Hi students, very good morning. Today we have lesson The Lost Spring. Before we begin the lesson, I want to bring your attention to certain questions. Think. Today while we are enjoying all the basic amenities over here, there are thousands of people who are deprived of all these basic amenities like food, education, clothing and shelter. Should we think of them? And here is the answer. If we can't think about those people, definitely it put a question mark upon our humanity. प्लस फ्रेंड्स इतनी सारी सुविधाएं हम आप लोगों के पास हैं, पर हजारों ऐसे बच्चे हैं जो शायद आपसे भी बहुत छोटे हैं, जिनके पास ना खाने के लिए भोजन है, न ठहरने के लिए मकान है, न पहनने के लिए कपड़े हैं और शिक्षा बेसिक तक नहीं मिल पा रही है। क्या हम उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये प्रश्न है एक हम सभी से। और नरेटर ने और राइटर ने इन सब की पैथेटिक कंडीशंस के बारे में डिस्क्राइब किया है। आज के इस लेसन में वी विल बी डिस्कसिंग टू स्टोरीज। दो कहानियां हैं, आज हम एक ही कहानी करेंगे। One is from the city Delhi. There is a place Simapuri, who in fact is habitation of the poor people who have migrated from Bangladesh, and second one from Firozabad, the Bengal city. तो आज हम कहानी पढ़ेंगे दिल्ली की सेमापुरी लॉस्ट स्प्रिंग। एडिशन 1944 में इनका जन्म हुआ है राउरकेला में एंड शी हैज़ टू ए वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखती है। इनके फादर निज़ाम जो हैदराबाद के थे उनके पास सलाहकार रहे हैं। उनकी मदर भी बहुत अच्छी उर्दू पोएट रही है और साहित्य इन्हें जन्म से ही मिला है। The story begins here. Sahibik, this is Simapuri in Delhi. In fact, the story has been titled Sometimes I Find a Rupee in the Garbage. And here is Delhi. It's the portion Simapuri. The Charbagh के approximately area रहता है. The story begins. First, I would narrate you a brief story in English and then in Hindi. Story begins and Anishan asked a question to a boy named Saheb that why he was scrounging the garbage. And then she also declares about him that he had come from Bangladesh. He declared that there is no school in his surrounding, and she, with job, made a promise, false promise with him, if she could open a school, whether he would come to the school. And he said, of course. After a few days, he came again to her and asked the question whether the school is open. And she felt ashamed. She felt ashamed of making a false promise with the boy, but she also realized that these kind of promises are common with the poor people. Then she asked his name, and he declared that his name was Sahib Alam. She was astonished whether the boy knew the meaning of the Sahib Alam, the Lord of the universe. If he would have known the meaning, definitely he wouldn't believe over it. This went since she saw a group of boys who was generally wearing no shoes, and she asked why he didn't wear chappals. He declared that his mother didn't bring the chappals from the shelf. And the second one, who was wearing shoes which is unmasked, he declared that he used to throw chappals away from him. And when she asked the question whether why he was wearing these unmasked shoes, he immediately shuffles his shoes. And then this company brought her to Semapuri. Semapuri, in fact, a place who in fact is at the periphery of Delhi, but far away from that. Before that, she remembered one incident from Uddipi. Uddipi is a place in southeast Karnataka. She remembered one incident of a temple where a boy came to the priest and goddess. He requested the goddess that he should have been given the shoes. And the second boy, who was having all shoes, but he simply asked the goddess, bless him that the shoes should never be lost. This company brought her to the place Semapuri. Semapuri is a habitation where 10,000 people who have migrated in 1971 from Bangladesh. They used to sit over there, used to live over there. They weren't having any identity. They didn't have any passport over there, but they have simply ration card which can provide them the food, and they also have the right to vote. And that is sufficient for those people to have 2 times meal over there. Then she asked the question with the women who live in Semapuri and who had migrated from Bangladesh. When she asked the question why they had migrated from green field and the fields and rivers from Bangladesh, they simply replied that it was just because of the storms. Storm hardly leave any crop with their field, and it's better to come to the city where at least they could have 2 times meal. This is the situation. She also described the entire situation over here, that they used to live in very small huts, which could hardly be called the cottages,
and this is a condition under the tarpaulin where there is a lot of water seeping into their houses. This is the pathetic condition she has expressed over here. That's why she declared that Semaphore is a place on the periphery of Delhi but far away from it metaphorically. Metaphor is a figure of speech. We will discuss it later on. She also asked the boy that what they were searching, and they declared that they sometimes used to find rupee, and once they have found a 10 rupee note over there. That's why she says that for the old people, it's a survival, and for the children, it's simply a wrapped or wonder wrapped with gold, and it's gold for those people. Then once she see this particular boy was watching tennis. Of course, he couldn't afford the tennis game over there, but he's watching because he liked the tennis. And he also declared that he used to be permitted by the gatekeeper to swing in the garden when it's entirely empty. She says that he was wearing a very discolored shirt and trouser and shoes, which were, of course, were tennis shoes, but they were having a hole. It hardly matters whether those were the shoes of the discarded, which has been discarded by the rich boy. Now, the third time when the Saheb boy meets her, now he is having a canister in his hand, and then he declared that he used to work at the tea shop, and there he is earning 800 rupees. She asked a simple question whether he was happy to work over there, and his face declares that of course he is not happy over there because he has lost the entire carefree look, and he is no more his own master. This is what the story we have discussed over here. प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम कहानी की बात करते हैं, ये कहानी शुरू होती है एक साहिब नाम का लड़का है जो कचरे को ढूंढता रहता है एनएस जंग इस नरेटर के आसपास में। वो उसे जानती हुई एक दिन उससे अनायास पूछ लेती है कि तुम इस कचरे को क्यों ढूंढते हो। फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करती है कि बांग्लादेश से ये लोग आए हुए हैं। वो जवाब देता है कि उसके आसपास में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए उसे वो स्कूल नहीं जाता है। उससे वादा करती है कि अगर वो स्कूल खुलेगी तो क्या वो स्कूल जाएगा, और उससे वादा कर लेता कि ऑफकोर्स। कुछ दिनों बाद वो दोबारा आता है, उनसे पूछता है कि क्या, नरेटर से पूछता है कि क्या आपका विद्यालय बन गया है, और नरेटर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत गिल्टी फील करती है कि उसने एक झूठा वादा किया उस लड़के के साथ जो करना नहीं चाहती, पर उसे एहसास होता है कि गरीबों के साथ इस प्रकार के हजारों झूठे वादे किए जाते हैं। उससे वो लड़की से नाम पूछती है और उसे नाम बता देता है कि साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब होता है कि दुनिया का आलम, दुनिया का मालिक। और फिर वो सोचती है कि क्या इस लड़के को अपने नाम का मतलब पता होगा। यदि होता तो शायद ये विश्वास नहीं कर पाएगा कि साहिब आलम के पास 2 वक्त का गुजारा तक नहीं है। फिर वो लड़के से पूछती है कि तुम शूज़ क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो नंगे पाँव बच्चों को देखती है। वो कहता है कि उसकी माँ शेल्फ से उन चप्पल को उतारती नहीं है, जबकि दूसरा लड़का जिसने अनमैच्ड शूज़ पहने हुए थे वो कह देता है कि अगर निकालती हुई तो इन्हें फेंक देता है। इन लड़कों को देख करके उसे याद आती है उदिप्पी, एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ के प्रेस्ट की, कि वहाँ एक लड़का मंदिर में जाता है और भगवान से दुआ करता है कि प्रभु मैं नंगे पाँव मुझे शूज़ मिल जाए, और दूसरा लड़का जिसके पास शूज़ है वो प्रभु से दुआ करता है कि देवी मुझे शूज़ तो मिल गए हैं, पर ऐसी कृपा करना कि कभी मुझसे खो न जाए। उन सब चीज़ों को याद करती है, जबकि परिस्थितियाँ बदल गई है। 30 साल बाद उस मंदिर में भले ही रेस्टोरेशन में चला गया है, बट फिर भी उस वीरानपन में भी उसे लगता है कि अब स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। बच्चों के पास ग्रे शूज़ भी है और यूनिफॉर्म भी है, वहाँ प्लास्टिक की चेयर्स भी देखती है, वो सारी स्थिति उसे स्मरण हो जाती है। इन लोगों के साथ दोस्ती होने के साथ वो सीमापुरी चली जाती है और सीमापुर की स्थिति को बताती है, इतनी दयनीय हालात में वहाँ है। फिर वो कहते हैं कि मेटाफोरिकली दिल्ली के करीब तो पर बहुत दूर है। कहने का मतलब यही है कि फिजिकली ज्योग्राफिकली तो दिल के अंदर ही है सीमापुरी शहर, पर उनकी जो दयनीय हालात हैं दिल्ली की सुख सुविधाओं से हजारों कोसों दूर है। उनके पास ना ढंग से विद्युत की सप्लाई है, ना पीने के पानी की सप्लाई है, ना ड्रेनेज है। यहाँ तक कि उनके मकान बहुत टूटे फूटे से मकान उनके लगते हैं। उनमें से एक महिला से वो पूछती हैं कि तुम लोग बांग्लादेश से हरे भरे खेत छोड़ करके यहाँ क्यों आए हो। वो महिला इसका जवाब देती है कि हरे भरे खेतों में हमेशा तूफान आ जाता हूँ, 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल है, तो बेहतर है कि यहाँ आकर के कचरा बेचकर हम 2 वक्त की रोटी खा करके आराम से सो सकते हैं। ये पैथेटिक कंडीशन बताती है वहाँ की, किस प्रकार से हालात, उनके टूटे फूटे से घर है, तरपाल उनकी छत पे मुश्किल से मिल जाए तो उससे भी पानी रिसता रहता है, और उसे ही अपने ट्रांजिट होम मान करके चलते, उन्हें वो अपने घर ले करके चलते हैं। ये जब उनसे पूछती हैं कि बच्चे कचरा क्यों ढूंढते हैं, तो बच्चे जवाब देते हैं कि उन्हें कई बार उन्हें नोट्स मिल जाते हैं। एक बार 10 रुपये का नोट पे मिला, और उससे इस बात का रियलाइज़ हो जाता है कि जहाँ बड़ों के लिए कचरा ढूंढना उनकी रोजी रोटी का साधन है, वहीं बच्चों के लिए ये वंडर्स हैं, हैरानी है, आश्चर्य, उनके लिए सीधा पैसा है, क्योंकि किसी के फेंके हुए या किसी के गुम हुए पैसे उस कचरे में उन्हें मिल जाते हैं और वो उसी से खुश हो जाते हैं।
एक दिन उस साहिब को देखती है, वो गेट की टेनिस क्लब के सामने खड़ा हो जाता है और टेनिस क्लब के गेट से अंदर को देख रहा होता है। उसे देखनी बहुत पसंद है और साथ ही बताता है कि जब वो टेनिस के अंदर कोई नहीं होता है तो गेटकीपर उसे जाने देता है और वहाँ वो झूलता रहता है। आज इसने भी डिस्कलर्ड शर्ट है, बहुत फटी पुरानी शर्ट पहनी है, ट्राउजर इसका ऐसा ही है और उसके पास शूज़ हैं। शूज़ में भी एक सुराख है, टेनिस शूज़ हैं। पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी अमीर के बच्चे ने फेंक करके जूते दिए थे और उसने एक सुराख भी है, पर इसी बात से ये खुश है कि कम से कम उसके पास जूते तो हैं। ये हालात देख करके दोबारा जब ये बच्चा उसको आखिर टाइम में मिलता है तो उस बच्चे के हाथ में केन होती है। ये दूध लेने के लिए मिल्क वो चाह रहा होता है और तब उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो बताता है कि दूध चाय की दुकान में काम करता है और उसे 800 रुपये और तीनों वक्त का भोजन वहाँ पे मिल जाता है। जब उससे सवाल करती है कि क्या वहाँ नौकरी करके वो खुश है, उसका उदास चेहरा इस बात का जवाब दे देता है कि वहाँ खुश नहीं है, क्योंकि वो अपनी केयरफुल लुक भी भूल चुका है और साथ ही वो अब अपने आप मालिक नहीं है, किसी की दुकान में, चाय की दुकान में किसी के पास नौकर के रूप में काम करता है जिससे खुश नहीं है। तो वो कचरे का थैला उठाना ज़्यादा बेहतर लगता है इस दूध के केन की अपेक्षा, जहाँ उसे भले ही 800 रुपये मिल रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। हमने मेटाफर की बात की, उपमा अलंकार होता है और इसी के साथ ये वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। विद दिस, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।